کہ امام عرش مقام امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام پاک کو جب شہید کر دیا گیا، امام پاک کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے شہادت کے بعد امام پاک کے وجود ناز سے کپڑے بھی نکال لیے، آپ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی اس کو بھی لے لیا، آپ کی زرہ بھی لے لی، آپ کی تلوار بھی لے لی۔ اس طریقے سے ساری چیزیں لینے کے بعد ان ظالموں نے اعلان کیا کہ اب حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں، اور وہ خوش تھے کہ ہم نے خاندان نبوت کو لوٹ لیا، وہ خوش تھے کہ اہل بیت اطہار کو انہوں نے ختم کر دیا، انہوں نے خاندان نبوت کو اجاڑ دیا، گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلیوں کو انہوں نے مسل دیا۔ اس طرح وہ خوش تھے، اور ساتھ ہی ساتھ صرف امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے جسد اقدس پر گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، بلکہ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے ان شہداء کی جو لاشیں خیموں کے اندر رکھی ہوئی تھی ان لاشوں کو بھی انہوں نے واپس سے چھینا، میدان میں لائے، اور ساری لاشوں کے انہوں نے گردنیں کاٹی، سب کے سر کاٹ لیے، اور سر کاٹنے کے بعد ان پر گھوڑے دوڑائے۔ اہل سنت کی معتبر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، امام جلال الدین سیوطی ہوں، امام ابن حجر ہوں، اسی طریقے سے اور بھی ہمارے جو بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز ہوں، حضرت مولانا حسن بریلوی ہو، اس طرح کے کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی اپنی اپنی کتابوں میں کہ جس وقت امام عرش مقام امام حسین علی جدہ وعلیہ السلام کے سر انور کو تن سے جدا کیا گیا تو اسی وقت سورج کو گہن لگ گیا، سورج گہنا گیا، اور ایسا اندھیرا چھایا کہ دن کے وقت میں تارے نظر آنے لگے، دن کے وقت تارے دکھنے لگے، دن کے وقت رات کا سما پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد خون کی برسات ہونے لگی۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 3 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور بعض لوگوں نے لکھا کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوئی، اور یہ جو برسات ہوئی خون کی تو یہ جن کپڑوں کے اوپر یہ خون گرا تو وہ کپڑے پھٹتے پھٹ گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، لیکن وہ خون کا اثر نہ گیا۔ لوگوں کے مٹکے، لوگوں کے برتن خون سے بھر گئے، دیواروں پر خون کا اثر آ گیا۔ امام سیوطی لکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں، ملک شام میں جو بھی پتھر ان دنوں ہٹایا جاتا اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا۔ یہاں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور بھی تو شہادتیں ہوئی ہے، شہادت حسین کا اتنا چرچا کیوں ہے، تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ساری شہادتیں عظمت والی، بزرگی والی، قابل احترام ہیں، لیکن کیا کسی شہادت پر اللہ نے اتنے غضب کا اظہار فرمایا، اللہ نے اتنے جلال کا اظہار فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی اتنی کثیر نشانیاں ظاہر ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو سرخ کر دیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا، کتب تاریخ کی کتب میں موجود ہے اور سیر میں موجود ہے، اسی طریقے سے جو وہ محدثین نے اپنی کتب میں لکھا کہ آسمان سرخ ہو گیا، اور 6 مہینے تک آسمان سرخ اور لال رہا، 6 مہینے تک اس کا اثر رہا، اور پھر وہ سرخی چھٹتے چھٹتے چھٹی۔ امام سیوطی لکھتے ہیں، سید محمود آلوسی نے لکھا کہ وہ جب چھٹی ہے تو پھر اب جو شفق کے ساتھ جو مخصوص سرخی نظر آتی ہے یہ وہی واقعہ کربلا کی نشانی ہے۔ شفق کے ساتھ اس طرح کی سرخی کربلا کے واقعے سے پہلے نہیں دیکھی جاتی تھی، یہ واقعہ کربلا کی بات کی نشانی ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں محفل حسین سجا کر کسی پہ احسان کرتا ہوں، یا ذکر حسین یا یاد حسین کر کے میں کسی پہ احسان کرتا ہوں، تو یاد رکھیں
10 दिन, 3 दिन, 5 दिन की ये महफिलें लोग करते हैं यादगार के तौर पर, लेकिन शफक के साथ कुदरत रोजाना शाम को सुर्खी जाहिर करके बताती है। कोई याद हुसैन करे न करे, करबला की याद रोजाना शफक के साथ सुर्खी की शक्ल में कुदरत जाहिर कर रही है और लोग उसको याद करते रहेंगे। अल्लाह अकबर। खून बरसा, आसमान सुर्ख हो गया, दिन के वक्त तारे नजर आने लगे, सूरज को गहन लग गया और वो बदबख्त, चूंकि जब कुदरत किसी की अक्ल पे पर्दा डाल देती है, कहा जाता है कि खुदा जब दीन लेता है तो अक्लें छीन लेता है, सुझाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। अबू जहल ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा, लेकिन वो ईमान नहीं लाया। अल्लाह अकबर। कई मोजज़ात उन लोगों ने देखे, ईमान नहीं लाए, समझ में नहीं आती थी बातें। खून की बरसात हो रही है, कुछ तो होश आ जाता, कुछ तो समझ में आ जाता, नहीं समझे। उधर वो लोग अल्लाह अकबर उसी पर बस नहीं करते, बल्कि एक तरफ लाशों पर घोड़े दौड़ा रहे हैं, लाशों को कुचल रहे हैं, और दूसरी तरफ चंद बदबख्त आते हैं, खैमों को आग लगा देते। जिसमें बीवियां थी उन खैमों को आग लगा दी गई। और आग लगाने के बाद सैयदा ज़ैनब खुद फरमाती हैं, यजीदियों के साथ एक शख्स था जिसका नाम हमीद बिन मुस्लिम था। वो कहता है कि जब खैमों को आग लगा दी गई और खैमे जलने लगे तो कैफियत ये हुई कि फिर चंद बदबख्त बढ़े और बढ़ने के बाद सकीना और जो दूसरी सैदानियां सैयदजादियां थी उनके ज़ेवरात वो छीनने लगे। नन्ही सी 7 साल की शहजादी सकीना, उनकी बालियां ऐसे छीनी कि कान कट गए। और वो जो कान कटे, तारीख में आता है कि आखिरी दम तक सैयदा सकीना के कान वैसे कटे रहे, खून की फुवारें निकलने लगी। और सैयदा सकीना ने सोचा कि मैं अपना तारुफ करा दूंगी तो शायद ये लोग मुझ पे रहम करेंगे, इसलिए कि मुसलमान है, बहैसियत मुस्लिम कम से कम यतीमों के लिए तो इनके दिल में नरमी होगी। तो सैयदा सकीना ने कहा, बाली सकीना ने, शहजादी सकीना ने कहा, रहम करो हम पर, हम अहले बैत हैं। और फिर कहा कि मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ, मेरे बाबा का इंतकाल हो गया, मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनने के बाद उन जालिमों ने सैयदा सकीना के चेहरे पे तमाचे मारना शुरू किए। बीबी पाक के साथ ये सलूक किया। अल्लाह अकबर। और फिर सैदानियों के जेवरात छीने, हत्ता के अली असगर का झूला तक लूट ले गए। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि एक चमड़े के बिस्तर पर जो है वो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बीमार जो है वो बेहोश पड़े हुए थे, उन जालिमों ने वो चमड़े का बिस्तर तक छीन लिया, उनके नीचे से खींच लिया। अल्लाह अकबर। और फिर इसी पे बस नहीं किया, उन लोगों ने बीबियों की चादरें तक छीन ली। चादर छीनने की रिवायत तो उस्ताद ज़मन ने भी लिखी, और भी बुजुर्गों ने लिखी कि चादरें तक छीन ली गई। सैयदा ज़ैनब ने कहा, बदबख्तों, हम नबी की बेटियां हैं, हमारे साथ क्या सलूक कर रहे हो? लेकिन उन्होंने एक न सुनी और खैमे में आग लगा दी। अब जिसमें बच्चे बैठे हुए थे, जिसमें खवातीन बैठी हुई थी, उसमें भी आग लग गई। आग लग गई तो हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि सारी बच्चियां, बच्चे जो छोटे छोटे थे, खवातीन, वो खैमे के बाहर निकल गई। एक बीबी साहिबा थी, कहता है कि चूंकि दुपट्टा तो छीन लिया गया था, जिसका चेहरा चांद की तरह चमकता था, वो कभी जलते हुए खैमों की कनात पर चलते हुए अंदर जाती थी, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती थी, कभी बाहर आती थी। मैंने उस बीबी से पूछा, बीबी क्या तुझे इस आग से डर नहीं लगता? ये जो तू आग पे चलती इधर अंदर आती जाती है। उसने कहा, क्या करूं, मेरा बीमार भतीजा अंदर बेहोश है और मेरी जान है वो, और मेरे भाई हुसैन की आखिरी निशानी है। अगर वो जल गया और उसका खात्मा हो गया तो हुसैनी नस्ल किससे चलेगी?
तो कभी अंदर जाती हूँ, कभी बाहर आती हूँ। फिर उसने कहा, बिल आखिर मैंने देखा कि वो अपने भतीजे ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पर डालकर आग पर चलते हुए बाहर लेकर के आई। ये सैयदा ज़ैनब का किरदार था, ये किरदार सैयदा ज़ैनब है। अल्लाह अकबर। उसके बाद फिर वक्त गुजरता गया, बड़े अजीब हालात हुए। उन्होंने तो जानवर भी पकड़े अहले बैत के, ज़बा करके उसको पकाना चाहा तो वो सब के सब खून बन गए, खून में तब्दील हो गए। अब वो इंतजार कर रहे थे कि सुबह हो तो सुबह के वक्त ये काफिला यहाँ से निकले, और शाम होने से पहले पहले उन्होंने सारी गर्दनें काट कर उस सरों को नेज़े पर बुलंद किया, और जो बड़े बड़े उनके लोग थे उनके साथ उन सरों को करबला से कूफा की तरफ रवाना कर दिया। चूंकि कूफा और करबला में कोई ज्यादा फासला नहीं है, तो वो सर लेकर 72 सर लेकर वो कूफा की तरफ रवाना हो गए। अल्लाह अकबर। इधर कटी पिटी लाशें हैं, और फिर जब दिन गुजरता है तो दिन गुजरने के बाद शाम शुरू होती है। कहते हैं कि मुसाफिरों की शाम भी बड़ी अजीब होती है। जब सैयदा ज़ैनब पाक अल्लाह अकबर जलते हुए खैमों को देखती है तो सोचती है, कल तक यही खैमे तो थे जो जवान बेटों से, भतीजों से, भांजों से, भाइयों से जगजगा रहे थे, जगमगा रहे थे। खैमे भी सूने हो गए, खैमे भी जल गए। कभी उधर देखती है, सदमा है, चादरें छीन ली गई। जिनके दुपट्टों को कभी अजनबी मर्दों ने नहीं देखा था, जिनके घर में जिब्रील अमीन इजाजत के बगैर नहीं आते थे, आज उनके खेमे जल गए, दुपट्टे छीन लिए गए, उनके चेहरों पे तमाचे मारे जा रहे। भूख और प्यास का अलग आलम है, कटी पिटी लाशें पड़ी हुई है। ऐसे आलम में शाम आती है, और जब वो शाम आई तो ऐसी वो शाम थी कि उस शाम को क़यामत तक के लिए याद किया जाएगा। मौर्रिखीन ने उसको शामे गरीबा लिखा है। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, खेमे जलते जलते जो बुझ गए थे रेत में, तो वो खेमे की कनातें बीबियां अपने सर पे डालकर अपने बालों को छुपाती थी, ताकि कम से कम बालों को पर्दे में कर लें। ये उनकी गैरत का हाल था, ये उनकी गैरत की कैफियत थी। नन्हे नन्हे बच्चे, एक उधर सन्नाटा, हवाओं की सनसनाहट आती तो बच्चे माओ से लिपट कर सहम जाते। कोई बेहोश हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई रो रहा है। अब सैयदा ज़ैनब की जिम्मेदारी बढ़ गई, इसलिए कि कल तक सालारे काफिला काफिले के साथ थे, सालारे काफिला भी चल बसा। अब कोई जवान तंदुरुस्त तो है भी नहीं। अब सैयदा ज़ैनब को सबका किरदार निभाना है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जैसा वक्त पड़ा वैसी बन गई ज़ैनब। माँ का किरदार भी ज़ैनब निभाए, हुसैन पाक का किरदार भी ज़ैनब। क्या हौसला कुदरत ने दिया था, क्या हिम्मत दी थी कुदरत ने। सैयदा ज़ैनब पाक, शाम का वक्त है, कोई लिपट के रोता है, कोई बेहोश होता है, तसल्लियाँ देती है। वो शाम धीरे धीरे जब अपनी सिया जुल्फों को अर्ज़ करबला पर बिखेरती है तो वही शाम रात में तब्दील हो जाती है। और जब वो शाम रात में तब्दील हुई तो फिर अब दिन का इंतजार था। उधर वो बदबख्त शराब व कबाब में मसरूफ हो गए, एक दूसरे के साथ हंसी खेल करने लगे। सैयदा ज़ैनब ने सोचा, कटी पिटी लाशें हैं, इन लाशों पर पहरा दे वरना कहीं दरिंदे लाशों को नुकसान न पहुंचाए। बीबी ज़ैनब के पास कोई डंडा भी न था, कोई हथियार भी न था ताकि वो ले करके पहरा देती। बीबी ज़ैनब ने रेत में कुछ ढूंढना शुरू किया। एक टूटा हुआ खंजर अली की बेटी के हाथ लगा। वही टूटा खंजर लेकर लाशों के इर्द गिर्द पहरा देने लगी, ताकि दरिंदों से, ये जो दरिंदे इनसे, या वो जो दरिंदे हैं जो इंसानी शक्ल में, उनसे अब लाशों को बचाएं। और फिर सैयदा ज़ैनब अंधेरे में लाशों पे पहरा दे रही थी। ऐसे में देखा कि उन लाशों से
किसी की सिसकियों की आवाज आ रही है, कोई सिसक सिसक करके उन लाशों के अंदर रो रहा है। बीबी सैयदा ने लाशों की तरफ तवज्जो की तो किसी के रोने की आवाज सुनी। तो जब आवाज पर पहुंची तो क्या देखा, एक दबी कुचली लाश है, एक दबी कुचली लाश है। पहचानना सैयदा के लिए उसको मुश्किल न था, लेकिन है दबी कुचली, सर नहीं है उसका, और उसके सीने पर सर रखकर सकीना रोती है और बाबा बाबा कहती है और सिसकियां लेती है। सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब अपने उठाती है, सीने से लगाती है। कहा बेटी यहाँ कैसे पहुंची? तो कहा कि फूफी अम्मी आपको तो पता है ना, आपको तो मालूम है ना कि मुझे मेरे बाबा के सीने के बगैर, मेरे बाबा के सीने के बगैर नींद नहीं आती। मेरे बाबा मुझे सीने पे सुलाते थे, तो मैंने इन कटी हुई लाशों के पास आके कहा बाबा कहाँ है आपकी सकीना सोना चाहती है, आप कहाँ है? तो मैंने देखा फूफी इसी लाश से आवाज आई थी, मेरी सकीना तेरा बाबा यहाँ है। तो मैं यहाँ पर आ गई। फूफी अम्मी सैयदा सकीना को सीने से लगाया। एक शख्स जो यजीद के लश्कर में था, वो कहता है कि जब इमाम हुसैन की लाश घोड़ों से कुचली जा रही थी तो हड्डियों की कड़कड़ाहट की आवाज हमने सुनी। इस तरह से इमाम की लाश कुचली गई। सैयदा सकीना को उठाकर फिर आपने बीबियों के पास पहुंचाया और जहां सब खवातीन बैठी हुई थी, खुले आसमान के नीचे सैदानियां सैयदजादियां बैठी हुई है। सैयदा सकीना टूटा खंजर लेकर के पहरा दे रही है। अब ऐसे में सैयदा ज़ैनब किसी को देखती है कि कोई आने वाला लाशों की तरफ आता है। सैयदा ने गरजदार आवाज में जो है वो गरजदार आवाज में कहा कौन हो तुम, और हाथ का खंजर तान दिया। कहा खबरदार अब आगे नहीं बढ़ना, अब क्या चाहते हो? सब तो लूट लिया, जवानों की जवानी लूट ली, बचपनों का मासूम बचपन लूट लिया, बीबियों के जेवरात छीन लिए, अली असगर का झूला छीन लिया, खैमे जला दिए, हत्ता कि तुमने अपने नबी की बेटियों के दुपट्टे तक छीन लिए। अब हमारे पास बचा क्या है? क्या लेने आते हो? अब क्या चाहते हो? अब सब्र का पैमाना लबरेज न हो, वही रुको, वरना अली की बेटी अब तुम पर अपना हथियार उठाकर तुम्हें जो है वो जहन्नम रसीद कर देगी। वो आने वाला जो आ रहा था उसने कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं और मैं हुर की बीवी हूं, और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है या मैंने गुजारिश की है कि अब चौथी सुबह तुलू हो रही है, नन्हे नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, चौथी सुबह तुलू, न खाना है न पानी है। तुम कहते हो कि कैदी बनाकर यजीद के दरबार में ले जाएंगे और इनाम पाएंगे, तो कम से कम लेकर तो उन्हें जाओगे कि जो लोग हयात होंगे, जिंदा होंगे, ये मर जाएंगे तो कैसे ले जाओगे? इसलिए इनको कुछ पानी पिलाओ, कुछ खिलाओ। तो उन्होंने मुझे पानी दिया है। बीबी मैं पानी लेकर आई हूं, ये बच्चों को पिलाए, आप पिए। सैयदा ज़ैनब ने जब पानी का नाम सुना, हुर की बीवी को सीने लगाकर फूट फूट के रोने लगी। कहती है हुर की बीवी अब हमें पानी नहीं चाहिए, अब हमें पानी की जरूरत नहीं है। क्यों? तो ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे अली अकबर की जवानी लुट रही थी? ये पानी क्यों न लाई उस वक्त जब मेरे कासिम का शबाब लुट रहा था? मेरे औनो मोहम्मद पलट पलट कर आते थे, पानी का मुतालबा करते थे। मेरा मासूम असगर 6 महीने का शहजादा पानी से जबान बाहर करता प्यास की वजह से, कभी मुट्ठियां खोलता कभी बंद करता। उस वक्त ये पानी क्यों न लाई? ले जा, हम ये पानी नहीं पीते। हुर की बीवी ने कहा बीबी वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, कबूल कर ले पानी। आपको अम्मी आपकी अम्मी बीबी सैयदा का वास्ता, जब नाम माँ का सुना, सैयदा पाक ने हुर की बीवी को साथ लिया और साथ लेकर के वहां चली जहाँ छोटे छोटे बच्चे बीबियां बैठी हुई थी। मौरखीन ने बयान किया है बच्चों की और बीबियों की तादाद कुल मिलाकर 22 से 25 होती थी। वो सब वहां बैठी हुई थी। वो हुर की बीवी का
के हाथ में मशकीज़ा था। सैयदा पाक ने, बीबी सैयदा ज़ैनब ने पानी निकाला कटोरे में। उतने वक्त में जब सैयदा सकीना बेहोश हो चुकी थी, चेहरे पे छींटे दिए, होश में आई। होश में आने के बाद सैयदा सकीना को बीबी ज़ैनब पाक ने कहा, लो बेटे मेरे लाल, पानी पी लो। जैसे पानी का नाम सुना तो सैयदा सकीना ने कहा, फुप्पी अम्मी, क्या चचा अब्बास फुरात से वापस आ गए हैं? फुरात से चचा वापस आए हैं? सैयदा ने कहा रोते हुए, नहीं बेटी, तेरा चचा तो फुरात के किनारे ही सो गया, अब तेरा चचा कभी वापस नहीं आ सकता, तेरा चचा कभी लौट कर नहीं आएगा, समझना। ये पानी हुर की बीवी लाई है बेटी, लो पानी पी लो। फिर सकीना ने दूसरा सवाल किया, फुप्पी अम्मी, क्या तुम लोगों ने पानी पी लिया? तो कहा कि बेटे, नाना का फरमान है कि जब खाने पीने की चीज मिले तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बाद में बड़े। मेरी बच्ची, इस पूरे काफले में सबसे छोटी उम्र तुम्हारी है, पहले तुम पियो, बाद में हम देखेंगे। इतना सुनना था। हुसैन की तरबियत याफ्ता 7 साल की शहजादी ने कटोरा हाथ में लिया, जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी, सकीना उस तरफ दौड़ने लगी। बीबी सैयदा ज़ैनब ने सकीना को पकड़ा, कहा बेटी कहां जाती हो? कहा फुप्पी अम्मी, अभी तो आपने कहा कि खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को खिलाओ पिलाओ, फिर बड़े खाए पिए, और आप भूल गई है, कहती है पूरे काफले में सबसे छोटी सकीना है। नहीं फुप्पी, सबसे छोटा मेरा भैया अली असगर है, पहले मैं अली असगर को पिला लूं, मेरा भैया बड़ा प्यासा है। सैयदा सकीना को सीने से लगाकर बीबियों ने खूब रोया, खुदा जाने वो आंसू कैसे खुश्क हुए। खुदा खुदा करते करते रात गुजरी, रोते हुए, आंसू बहाते हुए, और फिर जब सुबह का सवेरा नमोदार हुआ तो ख्याल था कि सुबह आएगी तो सुबह कोई खैर का पैगाम लाएगी, लेकिन जो 11 मुहर्रम की सुबह आई वो सैयदजादियों के लिए और भी दुख की थी, इसलिए कि जब सुबह हुई, सुबह को तयम्मुम के साथ बीबियों ने नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद वो जालिम यजीदी फिर आए, और आने के बाद उन सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां पिलाई, जिनकी कलाइयां कभी किसी अजनबी मर्द ने नहीं देखा था, उनके हाथ में हथकड़ियां डाली। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कई दिन के बीमार थे, उनके हाथ में हथकड़ियां, उनके पैरों में बेड़ियां, खारदार तोप उनके गले में डाला, और फिर एक एक रस्सी से और एक एक जंजीर से कई कई लोगों को बांधा, छोटे के साथ बड़े को, बड़े के साथ छोटे को। बस वजह यह थी कि छोटे और बड़े जब साथ में बंधेंगे तो होगा ये कि बच्चे झुकेंगे, बच्चों के लिए बड़ों को झुकना पड़ेगा, और जब बड़े उठेंगे तो बच्चों को जब वो उनके गले में तकलीफ होगी, उनके हाथों में तकलीफ होगी। बच्चों पर भी रहम नहीं किया। किन के? लोग तो काफिरों के बच्चों पर भी रहम करते हैं। आज ट्रेन बसों में सफर में काफिर का बच्चा रोता है, लोग उसको भी चुप कराने के लिए कोशिशें करते हैं, लेकिन ये नबी के शहजादे थे, नबी की शहजादियां थी, उनके बच्चों के साथ ये सलूक किया गया, ये हाल किया गया, कैफियत की गई। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में ऊंटनियों की नकेल दे दी गई कि ये लेकर के चलो, इतने दिन की बीमारी, उठा नहीं जाता तो अजियत दी जाती है, कचोके लगाए जाते हैं। सैयदा पाक बीबी सैयदा ज़ैनब जहां कटी फटी लाशें पड़ी थी वहां आई, और आने के बाद जब बेटों के, भतीजों के, भांजों के, भाइयों के कटे फटे लाशें देखे, बेगोरो कफन पड़े हुए, तो मदीने की तरफ रुक करके कहा, नाना जान, अल्लाह आप पर दुरूद और सलाम की बारिशें नाजिल करे। नाना,
जिस हुसैन की पेशानी चूमते थे जरा उसको भी आकर देखें, जिसे कंधे पे बिठाते थे जरा उसको भी आकर देखें। आपका हुसैन बेगौरो कफन पड़ा हुआ है, जिसके लिए जन्नत से जोड़े आते थे आज वो बगैर कफन के पड़ा हुआ है। नाना जान अल्लाह आप पर दुरूद है, लेकिन शिकायत नहीं, शिकवा नहीं, मातम नहीं, चेहरे का नोचना नहीं, सब्र का हाल देखें। इमाम पाक की बहन सैयदा ज़ैनब पाक बहुत रोई, और आपने जब ये बातें कही अपने बेगाने सब रो पड़े। और जब चलने लगी तो इमाम आली मकाम के जसद अक़दस से चिमटने की कोशिश की, लेकिन जालिमों ने कहा इन्हें ले चलो। और फिर 11 मुहर्रम की सुबह को अहले बैत पाक की वो मुकद्दस शहजादियां और यतीम बच्चे कूफा के समत रवाना कर दिए गए। अमर बिन साद जालिम ने जो उसके मकतूलीन थे उनकी जनाजा पड़ी, उनको दफन किया इज्जत के साथ, और मौला हुसैन और उनके आवान व अंसार को यूं ही छोड़ दिया, ये कहकर कि इन्हें गिद्ध खाएंगे, इन्हें दरिंदे खाएंगे, जंगल के छोड़ दिया। ये काफिला जब रवाना हुआ कूफा की तरफ सब चले गए। करीब का एक देहात था, फुरात के किनारे पर, वहां के लोगों को खबर मिली, इत्तला मिली कि ऐसा वाकया हुआ। वो आए, चूंकि वो लोग सब जानते थे अहले बैत को, वो भी मुसलमान थे, वो सब जानते थे, पहचानते थे, मौला हुसैन को भी पहचानते थे, क्योंकि कूफा में काफ़ी वक्त गुजारा था। मौला अली के दौरे खिलाफत में इमाम हुसैन ने शहजादों को भी जानते थे। जिस जिसकी पहचान हुई उसकी कब्र उन्होंने, वो आए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, इमाम पर उनकी आवान व अंसार पर नमाज जनाजा पढ़ी, और नमाज जनाजा पढ़ के जिसे जिसे पहचानते थे उसकी उन्होंने कब्र वैसे बनाई। हुर के ख़ानदान के लोग, हज़रत हुर के ख़ानदान के लोग वहाँ पर आए तो उन्होंने अपने इलाके में ले जाकर जनाब हुर की कब्र बनाई। इसी तरह हज़रत हबीब इब्न मुज़ाहिर सहाबी रसूल, उनकी शनाख्त हुई तो उनकी कब्र अलग बनी। बाकी के सारे शुहदा को एक साथ उन्होंने एक जगह पे दफन कर दिया। और इमाम अली मकाम की पहचान हुई, इसी तरह मौला अली अकबर की पहचान हुई, और इमाम अली असगर चूंकि नन्हे से थे उनकी पहचान हुई। तो उन्होंने इस तरह दफन किया, इस तरह दफन किया कि इमाम अली असगर को इमाम हुसैन के सीने पे रखा। ये तसव्वुर करें, एक ही कब्र है, एक ही कब्र है, और उसमें तदफीन का उनका तरीका ये था कि अली असगर को सीने पे रखा और पायती में इमाम अली अकबर को रखा। इस तरीके से एक ही कब्र वो जुड़ जाती है तीनों की। हो सकता उन्होंने अलग दफन किया हो इमाम अली अकबर को, लेकिन इमाम अली असगर को सीने पे रखा और अब वो एक ही हो गई ये तीनों की कब्र। जहां हम इमाम अली मकाम के रोजे पर हाजिरी देते हैं, थोड़ी चौड़ी सी कब्र है, जब वहां पहुंचते हैं तो अंदाजा होता है हुसैन आज भी अकेला नहीं सोया, हुसैन आज भी सीने पर अली असगर को और पायती में अली अकबर को लेकर आराम फरमा रहे हैं। जब वहां जाते हैं, अल्लाह वो दीन आप सबको, हम सबको बार बार नसीब करे कि आप देखें इमाम का रोजा, जिसने दीन के लिए सब लुटाया। देखें, पता चलेगा लोग तो मरने के बाद अपनी औलाद को गोद से महरूम कर देते या गोद से औलाद महरूम हो जाती है, लेकिन हुसैन ने शहादत के बाद अभी भी बेटे को गोद में उठा रखा है। तसव्वुर की दुनिया में देखें तो अभी भी, और अली अकबर को गोया कि अभी भी उंगली पकड़ा रखा है। ये मेरी अकीदतें बोल रही है, अल्लाह अकबर। फिर कहते हैं कि वो कटे हुए सर, जब चूंकि 10 कोई रवाना हो गए थे तो उधर ये हुआ कि कूफा पहुंचते पहुंचते कूफा का जो सदर दरवाजा था वो बंद हो गया था। तो यूं हुआ कि सरों को जो है लेकर के वो बदबख्त लोग, अब वो नहीं चाहते थे कि रात की तारीकी में वो लेकर के जाएं, तो उन्होंने ये किया कि उन सरों को उन्होंने अपने घरों में रख लिया कि हम दारुल इमारत में ऐसे नहीं ले जाएंगे,
जब दिन निकलेगा तब ले जाएंगे। तो ये हुआ कि खौली बदबख्त पलीद, उसके पास इमाम हुसैन का सर था। उसकी बीवी का नाम नवार था। वो नवार नाम की औरत अहले बैत की मुहिब थी। ये रात को पहुंचा, पूछा 3 दिन से कहाँ था, कई दिन से गायब था। तो उसने कहा कि मैं करबला में था और तेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा लाया हूँ। कहा क्या तोहफा है? कहा हुसैन इब्ने अली का सर है। कहा अस्तगफिरुल्लाह, लोग ज़ेवरात लाते हैं और तू हुसैन इब्ने अली नवासे रसूल का सर लाया है। बदबख्त, अगर रात का वक्त ना होता मैं अभी तेरे घर से चली जाती। जो नवासे रसूल का एहतराम न करे मैं उसके साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। यजीद के हामियों की थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। खुदा के लिए फिरका वारियत छोड़ो, तासुब छोड़ो। देखो 1400 साल के बाद तुम कहाँ यजीद की हिमायत करने लगे। यजीदियों की हिमायत तो उनकी औरतों ने भी नहीं किया। उनके घर उजड़ गए, बीवियां घर से चली गई। और फिर उसने कहा अगर रात ना होती तो मैं चली जाती, मुझ पे हराम है कि अब मैं तेरे बिस्तर पर आऊं। और उसके बाद उस बीबी ने ये किया कि इमाम अली मकाम का सर उसने खौली ने जहाँ रखा था वो वहां गई। वो बीबी बयान करती है कि नवार नाम की बीवी वो बयान करती है कि मैं रात को उस सर अनवर के पास खड़ी रही और दुरूद शरीफ पढ़ती रही। तो मैंने क्या देखा कि सर से लेकर आसमान तक अनवार ही अनवार थे। और वहां पर फिर वो बयान करती, इमाम अबू इसहाक अस्फराइनी लिखते हैं कि वो कहती है कि मैंने देखा कि मेरे घर में चंद बीबियां आई और उन उस सर की पेशानी को बोसा देने लगी। मैंने पूछा, और रो रही थी। मैंने पूछा बीबियों तुम कौन हो? तो उन्होंने, एक बीवी ने कहा कि मैं हाजरा हूं, एक ने कहा मैं हव्वा हूं, एक ने कहा मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूं। और वो सब रो रही थी। अल्लाह अकबर। फिर सुबह हुई तो उन लोगों ने वो काफिला और ये काफिला, सरों का काफिला और ये काफिला, फिर उन्होंने कूफा में घुमाने के प्लानिंग से जो है वो कूफा शहर के अंदर फिर ये दाखिल किया। और जब वो कूफा में लाने वाले थे तो ऐलान करते थे कि कुछ लोग बागी हो गए थे, हमने उन्हें कत्ल कर दिया, उनके कटे हुए सर आ रहे हैं। ये नहीं कहा हुसैन इब्ने अली का सर आ रहा है, ये कहा कि बागियों का सर आ रहा है। उनके बीवी बच्चों को हमने कैदी बना दिया और वो जो कैदी हैं अब उनको भी लाया जा रहा है। तो कूफा वाले अपनी छतों पर चढ़ गए, लोग इंतजार करने लगे और लोगों का एक मजमा लग गया बाजार कूफा में। अब गोया के तमाशाई बनकर लोग खड़े हैं, किन बागियों का सर आ रहा है, किन कैदियों को लाया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़ गए, इंतजार करने लगे। जब सर नेजों पर बुलंद हुए और नेजों पर सर चढ़ाए गए तो अल्लाह अकबर, जब ये काफिला चला तो लोग देख रहे थे। कुछ पहचानने वालों ने पहचाना, कुछ लोगों ने नहीं पहचाना। जो लोग पहचान गए वो रोने लगे, मातम करने लगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा कूफा वालों तुमने मेरे भाई को खतूत लिख करके बुलाया, कूफा वालों तुमने मेरे भाई से झूठी मोहब्बत का इजहार किया, कूफा वालों तुमने मेहमान बनाकर बुलाया, तुम्हारी मेजबानी क़यामत तक याद की जाएगी। आज तुम्हारा रोना पीटना मातम करना ये तुम्हें कभी निजात नहीं दिलाएगा। जाओ तुम क़यामत तक रोते पीटते मातम करते रहोगे। तुमने बुलाकर धोखा दिया मेरे भाई को और तुमने उसके खानदान के साथ ये किया कि पूरा घराना कट गया, पूरा घराना लुट गया। बीबी ज़ैनब पाक यूं कहती थी, वो रोते थे। ऐसे में एक घर के करीब से गुजरे, तो चूंकि ये ऊंटों की नंगी पीठ पर बैठे हुए थे, औरतें छतों पर थी, तो ऊंट की पीठ और छत की बराबर हो जाते थे। तो एक औरत ने जब ये काफिला देखा और काफिला देख करके कहा कि कुछ सदके की रोटियां हैं, तो वो रोटियां उस तरफ फेंका। बच्चे भूखे थे, शहजादगान भूखे थे। मैं फिर कहता हूँ तकरीर की रौ में मैं बार बार बच्चे कह देता हूँ या कह रहा हूँ। अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ, कोई गुने की बात नहीं है, लेकिन हमारा इश्क इजाज़त नहीं देता। शहजादगान शहजादियाँ भूखे थे, जब वो सदके की रोटियाँ खजूर पानी फेंकते तो उस वक्त
सैयदा सकीना ने कहा, पुप्पी अम्मी कई दिन की भूख है, क्या इस वक्त हम खा सकते हैं? कहा नहीं बेटा, आले मोहम्मद पे सदका हराम है, हम सदका नहीं खाते। ऐसे में जो खातून रोटियां फेंक रही थी उस तरफ बीबी सैयदा ज़ैनब ने चूंकि अपना चेहरा बालों से छुपा रखा था, कहने लगी ये क्या है? तो कहा कि ये सदका है, इसलिए कि मैं मेरे मौला हुसैन की तरफ से रोजाना सदका निकालती हूँ ताकि उनकी उम्र में इजाफा हो, और मेरी तमन्ना है, बहुत तवील दिन हो गए मैंने ना हुसैन को देखा ना ज़ैनब को देखा, ना मैंने हुसैन को देखा ना ज़ैनब को देखा। कहते हैं कि कैदियों की दुआ, मुसाफिरों की दुआ रद्द नहीं होती। ऐ नन्ही सी बच्ची दुआ कर, ये मेरे हुसैन का सदका खाकर दुआ कर कि जल्दी से मुझे हुसैन की ज़ियारत हो और मेरी बीबी सैयदा ज़ैनब की ज़ियारत हो। ये सुनकर सैयदा ज़ैनब ज़ार ज़ार रो पड़ी और फरमाया कि वो जो आगे सर जा रहा है वो तेरे हुसैन का सर है, और जिसको तू देख रही है हालत असीरी में ये ज़ैनब है। उसकी चीख निकल गई, वो बेहोश हो गई। बाजारों में कई दिन तक काफिले को फिराया गया, और उसके बाद जब दारुल इमारत कूफा के अंदर ये लाए गए, सैयदा ज़ैनब जब गवर्नर हाउस में आई तो आपने कपड़े बदल लिए। सैयदा ज़ैनब ने कपड़े तब्दील कर लिए और मैले कपड़े, बिल्कुल मैले कपड़े पहन लिए। सैयदा ज़ैनब पाक ने किसी तरह से खुदा जाने जो तरीका हो मुअर्रिखीन ने लिखा है, और फिर उसके बाद नबी की शहजादियों को, नबी के घर के बच्चों को हाथ में हथकड़ियां और पैर में बेड़ियां डालकर खड़ा किया गया। जिनकी अम्मी की ताज़ीम के लिए मुस्तफा जान रहमत उठकर खड़े होते थे, आज उनकी बेटियां कूफा के दारुल इमारत के अंदर खड़ी हुई है। न सर पर चादरें हैं, जिसके नाना ने हातिम ताई की बेटी के सर पे चादर डालकर कहा, बेटी किसी की भी हो, बेटी तो बेटी होती है। जिसने बेचादरों को चादर दी, जिसने बेआबरुओं को आबरू दी, जिसने जलीलों को इज्जत दी, जिसने गुमराहों को हिदायत दी, जिसने कंगालों को माला माल किया, आज उसी के घर की बेटियां हाथ में हथकड़ियां पहनकर, पैरों में बेड़ियां पहनकर बगैर चादर के खड़ी है। कोई बैठने के लिए भी नहीं कहता। ऐसे में इमाम का कटा हुआ सर एक तश्त में रखा हुआ है। इब्ने जियाद बदने हाथ बानी फसाद वो मलऊन हाथ में छड़ी लेकर इमाम हुसैन के लबों पर छड़ी लगाता है और कहता है, हुसैन तू कितना खूबसूरत है, तेरे दांत कितने हसीन है। हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम वहां पर मौजूद थे। वो कहते हैं, बदबख्त इस लब को छड़ी न लगा, मैंने बार बार मुस्तफा जान रहमत को ये लबों को चूमते देखा है, तू छड़ी लगा के बेअदबी करता है। उसने कहा बदबख्त ने कि अगर तू बुढ़ा होकर सट न गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। वो उठे रोते हुए कहा, लोगों तुमने नबी की आल के साथ धोखा किया और इब्ने मरजाना को अपना अमीर मान लिया। सुनो, ये वो पलीद और बदबख्त लोग हैं कि इमाम अली मकाम की शहादत की बात तुम्हारे अच्छों को कत्ल करेंगे, तुम्हारे बुरों को ये बढ़ावा देंगे। ये कहते हुए निकल कर चले गए। उसके बाद इब्ने जियाद ने कहा, ये औरत खड़ी है, कौन है? सैयदा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, कौन है ये? फिर कोई जवाब नहीं दिया। फिर कहा, कौन है ये? तो कूफा की कुछ औरतें साथ हो गई थी। एक औरत ने कहा, ये बीबी सैयदा ज़ैनब पाक है, हुसैन की बहन। हाँ। उसने कहा, देखा अल्लाह ने हम सच्चों को कैसी मदद की और तुम्हारे भाई का क्या अंजाम किया। सैयदा ने फरमाया, सैयदा ज़ैनब ने, अल्लाह ने उसकी शहादत लिखी थी मेरे भाई की जो पूरी हुई।
اور اللہ کی مدد میرے بھائی کے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں۔ تو فاسق، تیرا باپ فاسق، اور تیرا امیر یزید فاسق۔ میرے بھائی تو سچائی اور صداقت پر تھا۔ پھر امام زین العابدین پر نظر پڑی، اس بدبخت نے کہا یہ بچہ کیوں زندہ ہے؟ کون ہے یہ؟ کہا یہ حسین کا بیٹا ہے۔ کہا یہ کیوں نہیں مرا؟ اس کو بھی مار ڈالو۔ تو کسی نے کہا بچہ ہے، کہا اس کو چیک کرو بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ انہوں نے کیسے چیک کیا، میری زبان میں طاقت نہیں۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے تھے، اگر پڑھنا ہے تو آئینے قیامت میں پڑھو کہ کیسی قیامت ڈھائی ان ظالموں نے۔ امام زین العابدین کی جوانی چیک کرنے کی بات کی گئی، اور پھر کسی نے بتایا بدبخت نے کہ یہ جوان ہے، اور پھر امام زین العابدین کو قتل کرنے کی جب بات ہوئی تو سیدہ لپٹ گئی، کہا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کر کہتی ہوں اگر اس کو قتل کرنا ہے تو اس کے ساتھ مجھے بھی قتل کر دے۔ امام زین العابدین نے، بیمار تھے، ہتکڑیاں تھی، تھکن تھی، سب تھا، فرمایا شہید کر دو مجھے، لیکن ایک وصیت کرتا ہوں اس قافلے کے ساتھ کسی شریف انسان کو کر دینا تاکہ خیر و عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ یہ بیبیاں مدینہ منورہ تک پہنچ جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کچھ دن تک کوفہ کے قید خانے میں ان کو رکھا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے با اختلاف روایت کم و بیش 35 دن تک کوفہ کے قید خانے میں یہ رہے۔ آپ یہ نہیں سمجھے 3 دن کا کربلا، نہیں، 3 دن کا کربلا، یہ مشکلیں ہیں، یہ مصیبتیں اٹھائی ان لوگوں۔ یہ جو ہے نا کہ کربلا کے بعد لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی، کیوں نہیں آئی؟ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا۔ 35 دن تک کوفہ کے دارالامارت میں قید رہے۔ پھر یزید پلید کا خط آیا کہ ان کو یہاں بھیج دو، یہاں بھیج دو، یہاں روانہ کر دو۔ اب وہ 5000 سپاہ کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ، اب یہ معاذ اللہ جنہیں وہ قیدی کہہ رہے تھے اس قافلے کو کوفہ سے ملک شام، دمشق جسے دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق روانہ کیا گیا۔ جب دمشق وہ قافلہ چلا تو وہی نیزے پہ سر تھے۔ کم و بیش انہوں نے اتنے مقام پر پڑاؤ کیا اور ہر شہر جو بڑا شہر پڑتا تھا وہاں جو وہ گھمایا کہ دیکھو جس نے یزید کے ساتھ بغاوت کی اس کا انجام یہ ہوا، اس لیے جو بھی یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ وہ سر لے کر کے گھومتے رہتے اور آگے بڑھتے رہتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ سر لے کر کے چلے تو وہاں پر ان کو پڑاؤ کرنا تھا، ان کو ایک گرجا ملا، اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے۔ میں جب ملک شام گیا 2005 میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا، وہ گرجا ملا، پتھر کا بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے، گرجا ان کو ملا۔ وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ گرجا کا راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجا سے، اس کو کچھ محسوس ہوا، وہ گرجا سے باہر آیا، اور گرجا سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سیدانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ انہوں نے بغاوت کی، معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا۔ کہا کہ کیسے لوگ ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور ان کو ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے؟ پھر اس راہب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی 10,000 درہم ہے، پوری زندگی میں نے اتنا کمایا، یہ سب تمہیں دیتا ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو۔ انہیں تو پیسے چاہیے تھے، 10,000 مل رہے تھے، 10,000 لے لیے، سر دے دیا۔ وہ راہب پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا، زلفیں صاف کی، گرد و غبار صاف کیا۔ امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا، خون کا اثر اس وقت بھی تھا۔ اس کو پتھر پہ رکھا، وہ پتھر ابھی بھی گرجا میں موجود ہے، اب وہ گرجا نہیں، اب وہ مسجد ہے۔ تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی، تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا، آج بھی خون کا وہ اثر ہے۔
اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 225 سال تک، کربلا کے واقعے کے بعد 225 سال تک جب بھی یوم عاشوراء آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا، جب بھی یوم عاشوراء آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا، لیکن اس کے 225 سال کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں دیکھی، لیکن خون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے، وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا، دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت۔ یعنی کیا اس نے خدمت کی، اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے، قافلہ آگے بڑھا۔ اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے، اتنی حوصلہ کہاں ہر بات کی جائے۔ بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یزید نے پورا دمشق سجوایا، دمشق سجوایا گیا۔ جو لوگ یزید کے حمایتی وہ بھی لکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ دمشق سجایا گیا۔ اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا، سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہل بیت کے آنے والے قافلے کا۔ ڈھول بجائے گئے، نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ، چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ 22 سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے، الگ الگ مورخین نے الگ الگ بات بیان کی۔ جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا، کچھ منزل پر تھا دمشق شہر، رات اندھیری تھی، اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا، ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، قبول کرو، یہ قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے، کون ہے تو، اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے؟ یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے، شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عذر شرعی کے، آج ان کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے، یہ کون ہے تم، کیوں ہمدردی کر رہی؟ اس نے کہا بی بی اندھیرا تھا، بات اتنی ہے، سیدہ پاک نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رکھا تھا، بات اتنی ہے کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوں، میں کنیز ہوں ان کی، اور میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق، 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق میں، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا، اس پر میری روح بہت خوش ہوگی۔ بی بی چونکہ فاطمہ میری شہزادی ہے، میں ان کی کنیز ہوں، لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کی غلامی میں گزارا، جب ان کا وصال ہو گیا پھر حالات ایسے بنے کہ میں نے مدینے میں رہنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر میں مدینے چھوڑ کر دمشق آ گئی ہوں،
اور اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میں دوبارہ مدینے جانے کی ہمت نہیں کرتی. اب بس ایک تمنا ہے میری، ایک تمنا ہے کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی بی بی زہرا پاک کی وصال کے بعد، تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش پاتی تھی، اس کا نام زینب تھا، اور وہ میری بی بی کی بڑی ہمشبی اور ہمشکل تھی. چونکہ بی بی نے کہا کہ اس قافلے کی خدمت کرنا، تو ہر رات سن 60 ہجری جیسی لگی، ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں، شام سے کھڑی ہوتی ہوں، صبح تک رہتی ہوں، قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، پھر دوسرے دن آتی، پھر قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں. آج تم ملے مراد پوری ہوئی، اب یہ خدمت قبول کرو اور ایک دعا کر دو، کیونکہ میری بی بی نے تمہارے لیے خدمت کے لیے کہا تم معمولی لوگ تو نہیں ہو، تو دعا کر دو بس کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں زینب کو دیکھ لوں اور حسین کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ دونوں میری گود میں پلے ہیں، ایک بار دیکھنا چاہیے، دعا کر دو بی بی. بس اتنا سننا تھا. زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور روتے روتے جب سسکیاں بلند ہونے لگی تو فضا نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہ میں زینب کا ذکر کرتی ہوں اور حسین کا ذکر کرتی ہوں تو تیرے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں. کیا نسبت ہے تجھے زینب سے؟ کیا نسبت ہے تجھے حسین سے؟ تو سیدہ نے کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہی حسین کا سر ہے، اور یہ جو ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں ہیں یہی زینب ہے. اللہ اکبر. پوچھا بی بی یہ حال کیسے ہوا؟ سیدہ پاک نے کچھ باتیں بتائی اور پھر فضا ساتھ ہو گئی، سیدہ فضا ساتھ ہو گئی. پھر یہ قافلہ دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ سہیل ابن سعد تجارت کے لیے ملک شام آئے تھے مدینہ منورہ سے. جب دیکھا کہ دمشق سج رہا ہے، ڈھول بجنے، اعلان ہو رہے ہیں، تو پوچھا یہ خوشی کا موقع کیا ہے یہاں؟ تو بتایا گیا کہ حسین کو قتل کر دیا گیا، کٹے ہوئے سر اور ان کے اہل بیت کا قافلہ آ رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کس دروازے سے وہ داخل ہوں گے؟ تو کہا کہ بابو سعا سے وہ داخل ہوں گے. تو آپ نے کوشش کر کے وہاں پر جگہ بنائی، اور اس کے بعد جب کٹے ہوئے سروں کو دیکھا اور بیویوں کو قیدی کی حالت میں دیکھا، وہ بڑے برداشت نہ کر سکے، ہمت نہیں تھی کہ جا کر کے کچھ بات کرتے. سب سے چھوٹی عمر سیدہ سکینہ کی تھی. سکینہ کے پاس جا کر بی بی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ تو حضرت سہیل سے انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں تو ہمارا کوئی ہمدردی نہیں، آپ کے نبی کا صحابی ہوں، آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اہل بیت کا محب ہوں، کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. کہ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کریں، ان سروں کو آگے کروا دیں، کیونکہ جب لوگ سر دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی دیکھتے ہیں. سر آگے ہو جائیں گے تو لوگ سر دیکھنے میں مصروف رہیں گے، ہمیں نہیں دیکھیں گے، ہم سے توجہ ہٹ جائے گی. پھر اس کے بعد اب ذرا دل تھام کر بس اتنی بات سن کر احساس کریں، بس ایک پیغام، نمازوں کو چھوڑنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، گناہ کرنے سے پہلے، زنا کے اڈوں پہ جانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، ہاتھوں میں موبائل فون لے کر زنا کے مناظر دیکھنے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا، حرام کھانے سے پہلے داستان کربلا یاد کرنا کہ کس قدر دین کو بچانے کے لیے، اقدار اسلام کو بچانے کے لیے قربانیاں دی ہے خاندان نبوت نے. پھر اتنا خیال کرنا کہ ہم عاشق کہلا کر ان کے مشن کو کیسے پامال کر رہے ہیں. دمشق کے اندر اس انداز سے قافلہ داخل ہوا کہ سیدانیاں بغیر چادر کے اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کی گردنیں بچوں سے بندھی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں. حضرت
इमाम ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक है, वो भी खारदार तोक, पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां है और हाथ में ऊंटनी की नकेल है। यूं गर्दन झुकाकर आज वो चल रहा है कैदी की हैसियत से, जिसके नाना बाबा ने कई लोगों को जहन्नम की कैद से निजात अता की थी। इस अंदाज से वो काफिला दाखिल होता है और फिर अल मुख्तसर यजीद के दरबार में आता है। यजीद के दरबार में वो काफिला आया। उस वक्त यजीद शराब पी रहा था, शराब पी रहा था। काफिले को देखा, देखने के बाद उसने शेर पढ़ा। शेर जो पढ़ा है उसने ये कहा कि मैं उतबा की औलाद ना होता अगर मैं इनसे बदला न लेता। ये उतबा कौन? जो बद्र में मारा गया था, वो बदबख्त उतबा जो बद्र में मारा गया था, उसकी तरफदारी करते हुए कह रहा है कि मैं उतबा की औलाद न होता अगर मैं इनसे बदला न लेता, और कहता कि बद्र में जो हमारे साथ सुलूक किया हमने वो बदला उनके बेहतर लोगों से ले लिया। और फिर उस बदबख्त ने कहा कि माज़अल्लाह बनु हाशिम पर कोई वही नहीं आई, उन्होंने तो यूं ही बादशाहत के लिए ढोंग रचाया था। अल-अयाज़ु बिल्लाह। इस तरह की बातें उस बदबख्त ने कही। और भी रिवायतें मिलती है। और फिर उनको दरबार में खड़ा कर दिया गया। जब खड़ा किया गया तो उस जालिम ने भी इसी तरीके की बात की कि हाथ में छड़ी लेकर इमाम आली मकाम के लबों को उसने बेअदबी करना शुरू की। इत्तेफाक से वहां रोम का सफीर बैठा हुआ था, एक यहूदी आलिम बैठा हुआ था। रोम के सफीर ने कहा ये इतना खूबसूरत किसका सर है? तो उसने बड़े घमंड से कहा ये मोहम्मद के नवासे का सर है और हमने उसको काट दिया है। तो उसने कहा तुम लोगों ने कत्ल किया? उसने फख्र से कहा हाँ हमने कत्ल किया। तो वो रोम का सफीर कहता है हैरत है तुम पर, हमारे पास ईसा अलैहिस्सलाम जिस गधे पर सवारी करते थे उस गधे के पैर में जो नाल होती है, नाल, वो नाल है, वो गधा नहीं है, गधे के पैर की नाल है, नाल। उसका हम इतना एहतराम करते हैं, जैसे तुम काबे को जाते हो वैसे हम उसके एहतराम में वहां तक सफर करते हैं। और तुमने नबी का नवासा। और जो यहूदी आलिम बैठा हुआ तो उसने कहा कि दाऊद अलैहिस्सलाम से लेके मुझ तक 70 पुश्तों का फासला है, यानी 70 पुश्तों के बाद में दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूं। यहूदी मेरा इतना एहतराम करते हैं और तुमने नबी के सगे नवासे को, उनके बेटे को शहीद कर दिया। हैरत है तुम पर, तू हक पर नहीं है यजीद। ये कह के उठ गया। यजीद को रहमुल्लाह कहने वाले और अमीरुल मोमिनीन कहने वाले जरा यहूदी से ये बात सीख लें कि यहूदी कह रहा है कि तुमने कत्ल किया, हक पर तुम नहीं हो सकते क्योंकि तुमने नबी के बेटे को कत्ल किया, नबी के बेटे को शहीद किया। उसके बाद दरबार में खड़ा किया गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा यजीद यही है इस्लाम तेरा कि तेरी औरतें तो जिनके नाम और नस्ब का कोई ठिकाना नहीं वो पर्दे में रहे और नबी की बेटियां यूं बेपर्दा दरबार में खड़ी रहे, यूं बेपर्दा दरबार में खड़ी रहे। अल्लाह अकबर। और फिर सैयदा पाक ने दरबार में खुतबा दिया। वो आपका दमिश्क के दरबार का खुतबा हम्दो सलात के बाद कहा अल्लाह ने हमारे घर में हमारे नाना पे कुरान नाजिल किया और हमारे लिए इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स आये तत्हीर नाजिल फरमाई, हमारी मोहब्बतों को लोगों पे लाजिम कर दिया और तुमने उनके साथ ये सलूक किया कि भूखा प्यासा मेरे भाई को शहीद किया। आपने जिस वक्त दरबार में खुतबा देना शुरू किया तो उस वक्त पूरा दरबार रो पड़ा, लोगों पर रिक़्क़तदारी हो गई, ये कैफियत थी। और उसके बाद यजीद ने जब देखा कि हालात अजीब हो सकते हैं तो उसने अपने मुशीर खास सरजोन से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद खानदान नबूवत के उन शहजादियों को और यतीम शहजादों को दिमश्क के कैद खाने में कैद कर दिया कि देखेंगे आगे क्या होता है, अभी पहले इनको कैद कर दो। उन्हें कैद कर दिया गया। कितने दिन तक कैद रहे उस दमिश्क के कैद खाने में, इस पर अलग अलग राय है मौर्रिखीन की। लेकिन अब इख्तितामी बात उस कैद खाने के हवाले से सुन ले।
बहुत दिन तक रहे। वहां ना रोशनी थी, न रोशनी का इंतजाम था, कुछ नहीं। बस इतना था कि दिमश्क का कोई बंदा अगर कैदियों के नाम पर उनसे मिलना चाहता, कि उसे कोई पता ही नहीं, मिलना चाहता तो मिलने की इजाजत दे दी जाती। मौरखीन लिखते हैं कि जब परिंदे शाम के वक्त घरों को जाते तो सैयदा सकीना अपनी फूफी से पूछती, फूफी अम्मी ये शाम को जाते कहाँ है परिंदे? तो सैयदा ज़ैनब कहती, बेटे ये अपने घरों को जाते हैं। तो सकीना बड़ी सादगी से कहती, फूफी अम्मी सब अपने अपने घर जाते हैं, हम अपने घर कब जाएंगे? फिर कभी पूछती, फूफी बाबा हमें लेने कब आएंगे? बाबा कब हमें लेने आएंगे? यहाँ से बड़ी वहशत है, यहाँ न खाना है न पानी है। मौरखीन ने लिखा है हड्डियां रह गई थी, बस सिर्फ हड्डियां रह गई थी। ये अंजाम किया। एक मर्तबा एक शामी जो है वहां से गुजर रहा था, कैद खाने के करीब से। आवाज आ रही थी, फूफी भूख लगती है, यहाँ खाना भी नहीं मिलता, यहाँ पानी भी नहीं मिलता, भूख से हालत खराब है। बल्कि कह रही थी कि फूफी अम्मी मैं मर न जाऊं, मैं मर तो नहीं जाऊंगी। इस तरह की बात शामी ने सुना कि एक बच्ची किसी औरत को मुखातिब करके फूफी फूफी कहती है और ये बात करती है, तो वो अपने घर गया। उसे नहीं पता था कि कैद खाने में कौन है, तो वो घर गया और घर जाकर अपनी बीवी से कहता है, ये देखो हम लोग जो हर जुमा को नजर हुसैन करते हैं तो वो तो गरीबों में बांट ही देते हैं। इस मर्तबा की नजर हुसैन यजीद के कैद खाने में ले जाना, मैंने एक बच्ची की आवाज सुनी है कि वो भूख से बहुत बेताब, और वो नजर ले जा करके दे देना। इसलिए कि जब नजर हुसैन हम देते हैं तो हुसैन के लिए तवील उम्र की दुआ करवा लेते हैं। कैदियों से बेहतर कौन और दुआ कर सकेगा? इस हफ्ते की नजर वहां ले जाना। उस खातून ने नजर तैयार की और तैयार करने के बाद कैद खाने में, दमिश्क के कैद खाने में पहुंची तो देखा कि अंधेरा है, तारीकी है। एक 7 साल की बच्ची एक खातून की गोद में है, वो उसके सर पे हाथ रखकर उसे तसल्लियां दे रही है, वो रो रही है, आंसू खुश्क कर रही है, ये सब कुछ हो रहा है। वो पहुंची और पहुंचने के बाद कहा कि मेरे शौहर ने आप लोग की आवाज सुनी तो उसने कहा कि खाना आपको लाएं। तो कहा आप कौन लोग हो? कहा कि ये बताओ कि तुम खाना लेकर के क्यों आई हो, आप हमारा तारुफ ना पूछिए, कहें तुम क्यों लाई हो खाना? तो कहा कि बीबी बात ये है कि मैं हर हफ्ते जुमा को नजर हुसैन करती हूँ, हुसैन का मुझ पे बड़ा एहसान है, नजर हुसैन करती हूँ। वो नजर मैं गरीबों को खिलाती हूँ और उनसे दुआ करवाती हूँ कि हुसैन को लंबी उम्र मिले। तो कहा कि ये सदका है? कहा नहीं, ये सदका नहीं है, ये नजर का खाना है, मैं वो खाना खिलाती हूँ। इतना सुनकर सैयदा ज़ैनब फूट फूट के रो पड़ी, बहुत रोई और फिर पूछा कि ये बता कि हुसैन का तुझ पे एहसान क्या है जो तू उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करवाती है, क्या एहसान है? तो उसने कहा बीबी मेरा बचपना था और मेरे बचपने में बीमार हो गई, इतनी बीमार हुई कि बचने की उम्मीद न रही। हकीमों से खूब इलाज करवाया मेरे बाप ने, मेरा बाप बहुत मालदार था, बहुत इलाज करवाया, लेकिन इलाज के बाद भी मैं बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मेरे बाप ने मुझे उठाया और मदीने मुनव्वरा ले गया। मदीने पहुंचा, रसूलुल्लाह के कदमों में मुझे डाल दिया। हुजूर ये मेरी बेटी है, जिंदगी और मौत के दरमियान ये कई दिन से खेलती है, बस आका करम कर दे मेरी बेटी को सेहत मिल जाए। यही गुफ्तगू हो रही थी, यही बात हो रही थी। ऐसे में पर्दा हटा और एक चांद जैसा बच्चा उस पर्दे से बाहर निकला और निकलने के बाद उसने मेरे सर पे हाथ रखा। हाथ क्या रखा, उसके हाथ की बरकत से अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी दी।
اللہ نے مجھے نئی زندگی دے دی۔ میرے بابا نے پوچھا آقا یہ کون ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ بس اس دن کے بعد سے حسین میرے دل میں بس گیا، لیکن میں نے حسین کو اس کے بعد کبھی نہیں دیکھا، میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن جس کی دعا سے مجھے زندگی ملی، میں نے ہر دن اس کے بعد اس کی لمبی عمر کی دعا، اور اب میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر جمعہ کو نظر حسین کر کے غریبوں کو کھلاتی ہوں، یتیموں کو کھلاتی ہوں، اور کہتی ہوں کہ دعا کرو میرے حسین کی، جس کی وجہ سے میری عمر بڑھی، اللہ اس کی عمر بڑھا دے۔ سیدہ پاک پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، سکینہ نے سنا، شیربانو نے سنا، جناب رباب نے سنا، سب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ ایسے میں اس خاتون سے کہا لے جاؤ، ہم نہیں کھاتے۔ اس خاتون نے پوچھا یہ تو بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ سیدہ زینب نے اتنا ضرور کہا لے جاؤ یہ کھانا، اب آئندہ نظر حسین نہیں کرنا، اس اعتبار سے کہ حسین کی عمر لمبی ہو جائے، اس لیے کہ حسین تو اب دنیا میں ہے بھی نہیں، کس کی عمر کی لمبی ہونے کی دعا کرتی ہو، اب تو وہ رہا بھی نہیں دنیا میں۔ پوچھا بی بی آپ کو کیسے پتا وہ کہاں، آپ کون ہیں؟ فرمایا یہ حسین کی بیٹی ہے، جسے تم دیکھ رہی ہو، میں حسین کی بہن ہوں، یہ ان کی بیوگان ہے۔ وہ خاتون روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ یہ داستان ہے کربلا کی۔ کبھی کبھی ہمت ٹوٹتی ہے، اللہ کا نام لے کر بس اس لالچ پر گفتگو کر دی جاتی ہے کہ آپ کو، ہم سب کو، نئی نسل کو اہل بیت کی، صحابہ کی، بزرگوں کی قربانی پتہ چلے، تاکہ اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے، دین سے قریب کر دے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو توفیق دے، ذکر کربلا کو قبول کرے۔ ان تمام 11 کے 11 نشستوں میں کوئی غلطی، کوئی کوتاہی ہو تو اللہ معاف کرے۔ دربار حسین میں یہ چھوٹی سی سوگات اللہ قبول کرے۔ اللہ آپ سب کو زندگی دے، مجھے بھی زندگی دے، ان محفلوں کو نظر بد سے بچائے، یہ محفلیں ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم رہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سنتے رہیں، فقیر قادری غلام پنجتن آپ کو سناتا رہے۔ اللہ ان محفلوں کے صدقے جتنے بیمار ہیں سب کو شفا دے دے۔